More importantly, from the perspective of understanding, Maldives का tourism और Maldives का जो एक existential crisis emerge हो रहा है because of climate change, that needs to be understood in entirety. And thus that will be the focus of this video, as I, Bhuvan Apurv Jha, on behalf of Study IQ IAS, will explore this intricate relationship of unsustainable tourism versus the very existence of Maldives as we know it. Let's get started. And before I go ahead and discuss this entire video in entirety, what you need to understand is the facts of the case. So Maldives, जो कि हमारा चैगोस रिज में हमें मिलेगा इंडियन ओशन में, यू आर लुकिंग एट 25 लो लाइंग कोरल एटॉल्स. नाउ you need to understand that this coral atolls are an extremely sensitive region. Coral reefs, you know, are extremely sensitive. वो वहाँ पे पानी के salinity, पानी के temperature, वो सब के साथ intricately जुड़े हुए हैं. और साथ ही साथ हम और आप समझ रहे हैं कि climate change के चलते you are experiencing not just increase in the temperature of the oceans, but also a level rise that is happening in our global oceans and seas. And thus, it is being said that Maldives' ka existence is at risk. Several independent researchers have said that by the year 2050, 2060, the estimates may vary, but एक बात का agreement है कि अगले 30 से 40 सालों में Maldives का existence खतरे में है. तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, पर साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मालदीव्स की अपनी सरकार, अपना गवर्नमेंट, उन्होंने कैसे अपने इस प्रोजेक्ट को, दिस एग्जिस्टेंस के प्रोजेक्ट को खुद कॉम्प्रोमाइज किया है. राइट, सो लेट्स गो अहेड एंड सी. 358 आउट ऑफ 1190 आइलैंड्स वहां पे अभी यूज हो रहे हैं. सबसे बड़ा आइलैंड गान आइलैंड है जो कि लामू एटॉल में स्थित है. So these are the say basic facts that you need to be aware of कि हम किस region की बात कर रहे हैं. Now that you understand that this is a very sensitive region that we are talking about, correct? That we need to understand that our Maldives, the entire area, is at a very critical juncture right now. And जब आप climate change की उसमें बात करते हो, तो क्या issues arise होके आते हैं वो समझना थोड़ा ज़्यादा important होता है. तो let's go ahead and understand the issues that we are facing insofar as Maldives is concerned. So just now I told you that you're looking at not just say sea level rise, but you're also looking at increased oceanic temperature. Correct? And you know कि वहां पे अब coral reefs हैं, coral atolls हैं. Thus you find that because of these two reasons acting simultaneously, आपका जो ओशन का पानी है उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है. और इसलिए आपको जान के हैरानी होगी कि अगर 1 मीटर से भी ओशन का पानी बढ़ जाता है तो मालदीव्स का नामो निशान हमारे मैप्स, हमारे एटलस से शायद मिट जाए. राइट, अ सी लेवल राइज ऑफ इवन 1 मीटर, entire Maldives could be lost. Now you need to understand that it is not just about the loss of a country. Firstly, it is about the loss of people, it is the loss of traditions, it is the loss of culture, it is the loss of stories, it is the loss of the Maldivian way of life. पर साथ ही साथ आप देखेंगे कि वहां तक पहुंचने के लिए किस स्टेज में वहां तक आप पहुंचेंगे. राइट, सो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके बीच में यू आर गोइंग टू हैव कोस्टल इरोजन, साथ ही साथ सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा. ऑब्वियसली आपने देखा ये आइलैंड इन द मिडल ऑफ नोवेयर है, तो विच मीन्स दैट विद द सॉल्ट वाटर कमिंग इन फ्रॉम द ओशनिक साइड, आपका फ्रेश वाटर सोर्सेज जो आइलैंड पे एग्जिस्ट करता है, जो कि एनीवेज लिमिटेड इन क्वांटिटी है, you are going to have major problems insofar as the availability of fresh water is concerned. Correct? At the same time, आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि Maldives as a country tourism dependent है. ये हमने आए दिनों में काफी न्यूज में रहा, Maldives की चर्चा हुई, बहुत विश्लेषण हुआ, और एक बात उभर के आया कि Maldives का जो पूरा इकोनॉमी है वो टूरिज्म डिपेंडेंट है, which means it needs to create the capacity for sustainable tourism. पर क्या मालदीव्स की सरकार ने आज तक
सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ उस तरीके से देखा है, उस इंपॉर्टेंस, उस सीरियसनेस के साथ देखा है जो ये मामला डिजर्व करता है। करेक्ट। सो विल गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट। सो वार्मिंग ऑफ द सी, लाइक आई टोल्ड यू, उससे आपके कोरल रीफ्स अफेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो सारी पब्लिक अपेरेंटली देखने जाती है, टूरिज्म सबसे पहले अफेक्ट होगा, साथ ही साथ अफेक्ट होगा आपका फिशरीज। एंड दस दिस असर्शन कि 2050-60 तक एक मालदीव्स का जो एक नामो निशान है, एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस है, वो शायद थ्रेट में हो। पर जैसे मैंने आपको कहा, टूरिज्म इज द सेंट्रल एरिया फॉर द मालदीवियन इकोनॉमी। अगर आपको मैं कुछ स्टैट्स बताऊं तो आप देखेंगे कि रफली 32.5% ऑफ द मालदीवियन जीडीपी इट कम्स फ्रॉम टूरिज्म। करेक्ट। रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो क्लोज टू अराउंड $2.5 बिलियन का रेवेन्यू मालदीव्स को मिलता है टूरिज्म की तरफ से। पर उसमें से कितना पैसा रीरूट होता है टू गो अहेड एंड क्रिएट कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, यह सवाल का उत्तर जानना बहुत आवश्यक है। Thus, you will go ahead and see कि इस प्रॉब्लम के चलते आगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मैंने आपको कहा that Maldives का लॉस is not just the loss of land, it is the loss of stories। और अगर आप ग्लोबल तरीके के ग्लोबल लेवल पे बात करोगे, then you will have to understand that this has also got a connotation of climate justice। क्योंकि इवेंचुअली जो पीपल, जो लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, वो कहां जाएंगे? उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर, उनका फूड, उनका टायर, उनका म्यूजिक, उनके टेस्ट्स, डिसलाइक्स, लाइक्स, ऑल ऑफ दैट व्हाट मेक्स अ कम्युनिटी, वो आप प्रिजर्व कैसे करेंगे? और ये क्वेश्चन सिर्फ मालदीव्स ही नहीं, जितने छोटे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हम कहते हैं, वो उन सारों का ये सेम सवाल है। इसलिए रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ COP28 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही निकल के आया कि जो भी आउटकम डॉक्यूमेंट था, उसमें ये स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, फॉर एग्जांपल वेनेटू, किरिबाती, तुवलू, मालदीव्स, मैडागास्कर, जो छोटे छोटे हमारे आइलैंड्स हैं, उनके कंसर्न्स को COP28 ने एड्रेस नहीं किया है। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट आई कैन मेक द स्टेटमेंट that their concerns were sidelined when the final outcome document was being drafted. Right? So which is why this climate justice also needs to be understood, because these are the people who are the front line against the battle against climate change. Right? So let's look at it. You are looking at the time frame of 2050 that is said कि finally you are going to have an existential crisis for the small island developing states. And thus you find that, well, they have gone ahead and approached the International Court of Justice कि इवेंचुअली एक रेगुलेशन हो, एक फ्रेमवर्क हो, जब ये प्रॉब्लम अराइज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हो, कि इवेंचुअली ये लोग जाएंगे कहां, किन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो ये तो रहा ग्लोबल फोकस इन सो फार एज द एग्जिस्टेंस ऑफ मालदीव्स इज कंसर्न्ड। पर हमें एक चीज और समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या मालदीव्स खुद कितना काम कर पा रहा है, कितने सारे पॉजिटिव स्टेप्स ले पा रहा है फॉर इट्स ओन पब्लिक। दैट इज एन ऑब्लिगेशन दैट हैज टू बी, इट्स कंप्लीटली मैंडेटरी फ्रॉम द मालदीव्स गवर्नमेंट। तो वो देखते हैं थोड़ा, क्योंकि रिसेंटली ह्यूमन राइट्स वॉच, एक प्रोमिनेंट एनजीओ, दैट केम अप विथ अ रिपोर्ट, एंड इन दैट रिपोर्ट there were several accusations that were made at the Maldivian government which basically point out कि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं और ब्लाइंडली टूरिज्म के पीछे भाग रहे हैं। एसेंशियली अगर मैं अंग्रेजी में कहूं, they are chasing the unsustainable tourism dream. Eventually, why? Because it's the golden egg laying goose. 33% of the GDP coming from tourism, which means आपको टूरिस्ट्स के लिए फैसिलिटीज बनाना जरूरी है, उनके आगमन जाने के लिए, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी फैक्टर्ड इन योर डेवलपमेंटल प्लान्स। और इस मिराज के पीछे भागने से पहले आपके अपने लोगों का कंसर्न्स मालदीवियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 बनता है। पर ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से मालदीवियन गवर्नमेंट ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजरअंदाज किया है। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड। Maldivian government, the report says, has failed to consult local communities ahead of developmental projects.
देखिए कैसे स्टोरी फाइनली डेवलप हो रहा है, दैट द कंट्री दैट इज एट द फोरफ्रंट इन द वॉर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, that will be among the first countries to feel the effects of climate change insofar as mass migration is concerned, that is now it stands accused of ignoring the interests of its own people. Right? So let's look at it. It has been accused by the report that the Maldivian government has ignored environmental impact assessment, EIA. Basically, किसी भी प्रोजेक्ट के पहले आप जाके असेस करते हो कि मेरे प्रोजेक्ट से इस लोकल एनवायरनमेंट पे, लोकल इकोसिस्टम पे क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेगा. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द नेगेटिव इफेक्ट्स, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मैं कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज करूंगा या मिटिगेट करूंगा. और यह सब होना चाहिए एक निष्पक्ष तरीके से. पर जैसे कि हम आगे देखेंगे, Maldivian government stands accused of diluting environmental impact assessment ताकि वो बना पाए projects for the influx of tourists, and that has come at the expense of the local Maldivian people. Correct? You are also looking at residents who have been harmed, obviously, क्योंकि आपने environmental impact assessment reports को dilute किया, नहीं समझा, नहीं पढ़ा, वो एक SOP फॉलो नहीं किया, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं फॉलो किया. ऑब्वियसली उसके कॉनोटेशंस तो नेगेटिव होने ही हैं. ओके, एंड ऑब्वियसली साथ ही आएगा आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल इरोजन, इंक्रीज्ड फ्लडिंग, ऑल ऑफ दैट फाइनली पॉइंटिंग टू दैट डेट जब जाके मालदीव्स का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रियलाइज हो जाएगा. Thus the question, my friends, that I want you to ask today is whether you can give Maldivian government a free pass, especially when it comes to climate inaction. They may have done exceptional work in terms of vocalizing on the international fora. COP28 हो, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हो, आप देखेंगे मालदीवियन मिनिस्टर्स काफी लाउडली और काफी वोसिफरसली अपनी बात रखते हैं क्लाइमेट एक्शन को लेके. पर क्या अपने घर पे वो सारे जो आप कह रहे हो, क्या आप वो फॉलो कर रहे हो? आर यू प्रैक्टिसिंग व्हाट आर यू प्रीचिंग? कथनी और करनी में फर्क है क्या? वो जानना जरूरी है. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, द फंडामेंटल क्वेश्चन. Does Maldives get a free pass to ignore its own environmental laws and international obligations? Right. So let's go forward and let's look at how it has played out. And for that purpose, you will have to go back in history a bit. Maldives ke former president Yamin, he was accused of money laundering. Money laundering for what? For making sure that the infrastructure creation that was happening for the new tourists, जो tourists आने वाले हैं, उनके लिए आपने डिसाइड किया कि आप लैंड रिक्लेमेशन करेंगे. बेसिकली आप सी में लैंड जोड़ेंगे, आप सी के से बेंथिक जोन से आप सैंड पंप आउट करेंगे और अपना लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स करके यू विल गिव योरसेल्फ लार्जर एरिया. पर उसमें हुई धांधली. साथ ही साथ क्या देखा गया? That a lot of the environmental impact assessment reports, they were completely diluted. In fact, अगर आप HRW, Human Rights Watch का report देखेंगे, तो you will find that they accuse the particular Maldivian government of plagiarism also. क्योंकि environmental impact assessment reports होते हैं site specific. आप impact देख रहे हो, which means localized level पे आपको assess करना है. पर यहां देखा गया कि आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया और वहीं से कट कॉपी पेस्ट करके बाकी सब में छाप दिया. बेसिकली यू हैव कंप्लीटली किल्ड द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसेस, द वेरासिटी ऑफ द प्रोसेस. एंड एट द सेम टाइम अनदर एक्यूजेशन वाज कि ये जो लोग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए. पर मालदीवियन गवर्नमेंट के EIA कमिटी में वो लोग थे जो डेवलपर्स की साइड से थे, which means they did not look out for the interests of the environment or the communities, but the project that was being proposed, which is the absolute antithesis of environmental impact assessment. And thus, the accusation that is Maldives doing what it preaches on international fora, on international forums. Correct? And at the same time, you have to understand that it's not just about the environmental impact assessment also, but it's about thoroughly ignoring the local population, making sure that there is a participatory approach. जब आप इतने इको सेंसिटिव जोन में रहते हैं तो आपको अपने कम्युनिटी को साथ लेके चलना है.
पर आप देखोगे आगे जाते वक्त, when we go ahead and go to the next slide, that this community participation, या जिसे हम कहते हैं stakeholder centric approach, this was thoroughly ignored, right? And thus the biggest example of that comes with this example of the construction of the कुलुदुफूशी एयरपोर्ट। अब इसकी स्टोरी काफी सिंपल है। मालदीव्स में ऑलरेडी एयरपोर्ट था, पर प्रेसिडेंट यामीन, वंस अगेन नोटोरियस फॉर हिज मिसडीड्स, ही प्रपोज्ड अ न्यू एयरपोर्ट 17 किलोमीटर पहले एयरपोर्ट से दूर। एनीवेज आपके पास एरिया कम है, पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया। फिर से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स को डाइल्यूट किया गया, एंड दस यू फाउंड द लॉस ऑफ मैंग्रोव्स, दस यू फाउंड द लॉस ऑफ बीचेस, पाम ट्रीज, और उसके चलते वहां के लोकल रेसिडेंट्स पे एडवर्सली नेगेटिव इफेक्ट्स देखा गया है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम which comes with unsustainable tourism. There is a price that humanity will pay for all the likes and the retweets and the follower count and the reels of all those celebrities who went to Maldives and finally, went about their business. Everything is not fair in what is perceived to be the paradise in the middle of Indian Ocean. Right? So let's go forward and let's look at the कुलुदुफूशी Airport. So President Yamin, इन्होंने EPA को ओवरराइड किया। नाउ EPA इज एसेंशियली द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अब प्रॉब्लम देखिए यहां क्या है। मालदीव्स में ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये होते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एंड थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो ये EPA एक ऑटोनोमस बॉडी है। पर यहां पे क्या देखा जाता है, ऑन वन हैंड the Ministry of Environment proposes a project, and on the other hand this EPA, the Environmental Protection Agency, जिसका काम है उस पर्टिकुलर प्रपोजल को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करके एक EIA रिपोर्ट बनाना, वो काफी दफा ऑटोनोमस नहीं होने के कारण अपना काम ठीक से नहीं करता। इनफैक्ट इट इज ऑलमोस्ट लाइक द गवर्नमेंट वर्सेस द गवर्नमेंट। एक तरीके से जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट की हम बात करते हैं, दैट इज कंप्लीटली एब्सेंट। करेक्ट? एंड दस यू फाउंड दैट मालदीव्स के काफी सारे एरियाज में, नॉट जस्ट द कुलुदुफूशी एयरपोर्ट बट द अद्दू रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट आल्सो हैव द सेम टाइप ऑफ accusations that are being leveled, right? So you look at loss of mangroves, palm trees, all of that happening. If you look at the project, ये देखिए, ये एयरपोर्ट बनने के पहले है, and you can see that your coastline was much more wider, whereas in this case it has become much more shorter. Do you realize? So this is the problem, that anyways it's an eco-sensitive area. Anyways, tourism ought to be regulated. Anyways, the preference should be on the citizens, the residents of Maldives. And yet, in this hunt for that golden egg-laying goose, you are essentially compromising on the very future of the Maldivian residents and the citizens. Right? तो देखिए यहाँ पे eventually क्या-क्या देखा गया। EIA आपके dilute किए गए। जो गवर्नमेंट को निष्पक्ष भाव से काम करना था, नहीं किया गया। उसके चलते लॉस ऑफ इनकम, होम्स जो रेसिडेंट्स हैं, समटाइम्स यू ऑल्सो हैड केसेस वेयर यू हैव लॉस ऑफ फ्रेश वाटर सोर्सेस। अब ऑल इज नॉट बैड विथ मालदीव्स। वैसे यू हैव द मालदीवियन गवर्नमेंट जिसने काफी सारे ऐसे स्टेप्स, ऐसे मेजर्स लाए हैं फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। पर इवेंचुअली आपको यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है उस चीज को कितने हद तक रेगुलेट कर सकते हैं, ये एक क्रिटिकल डिसीजन है। और इस क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में मालदीवियन गवर्नमेंट आज तक फेल करती आई है। करेक्ट? सो यू लुकिंग एट द इंपैक्ट एंड डैमेज फ्रॉम फ्लडिंग, ऑल दैट हैपनिंग व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट, जिसके चलते आपके मैंग्रोव्स का लॉस, पाम ट्रीज का लॉस, जो एक बफर एरिया आपका क्रिएट हो रहा था, वो आपने खुद काट दिया है। एंड दस दिस रिमेन्स द फोकस एंड द क्वेश्चन दैट आई वांट टू पुट बिफोर यू, वेदर मालदीव्स is guilty of climate inaction at home, whereas shouting vociferously and for the right reasons in international fora. Does Maldives not practice what it preaches? Right, my friends? So this is the question that the new president will have before during his term to answer, and one can only hope that the right decision will be taken.
that all the tourism money is coming at a cost and that Maldives is on a clock, on a timer. And the better would be for them to go ahead and quickly address this issue, keeping the interests of the residents, the citizens of Maldives first and foremost. Right, my friends? So for those of you, by the way, who are preparing for the civil services examination, अगर आप ये subject, ये topic समझ पाए, ये पूरा जो theory हम explore करना चाह रहे हैं, if you could grasp the concept, may I tell you about the P2I program of Study IQ, right? This batch being offered in Hindi, English and bilingual, okay? And it's a new year batch, ये शुरू हो रहा है 10th of January को, आपके classes हैं evening. And if you are interested, go ahead and connect with this. Use the code BALIVE. Why? Because you get allotted to my batch. हम इसी तरह बाकी सारे concepts of geography, environment और disaster management, जो कि by the way linked तरीके से पढ़ना है आपको civil services के लिए. Okay, that's first breaking news for you. अगर आपने आज तक नहीं पढ़ाई की है उस शैली में, तो go ahead and connect with this and use the code BALIVE, क्योंकि उसके बाद आप allot हो जाएंगे मेरे batch में. And then we will go ahead and explore and make sure that you are best prepared conceptually as well as in question solving for the future examinations. Right? And the entire PDF of this lecture, I shall upload it on my Telegram channel that goes by the name of Bhuvan Study IQ. और मैं इसी नाम से अवेलेबल हूँ अपने Instagram चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स, बुकेज एंड ब्रिकबैट्स, उन सब का प्रतीक्षा करूँगा. Right? So you can also scan it. And with that, my friends, I come to the end of this very brief presentation where we took a look at the unsustainable tourism of Maldives, creating havoc for them not just in the near term but also in the long term. With that, it's a wrap. Thanks for watching. Do consider leaving me a like अगर आपको ये discussion पसंद आया. I'll see you in the next video very soon. Bye.